Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the mitosis, and in mitosis we are going to discuss about the metaphase in this session. So we have already discussed the prophase in last session. Now we'll discuss the metaphase. Now see, metaphase means what? We had already discussed the prophase, and prophase was like there will be a disintegration of nuclear membrane has started from the prophase itself, and there was a formation of, you can say, spindle fiber. ऐसा स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रोफेज के एंड में. Now in metaphase what kind of event should occur? Now see, there would be no, you can say, nuclear membrane at all in metaphase. So metaphase से ये nuclear membrane पूरा disappear होना expected है, because now it's a time to form a complete spindle apparatus, right? So now see, ये जो है ये पूरा ऐसे फॉर्म हो जाएगा. Now this is the complete, you can say, a formation of spindle apparatus like this. So earlier we have seen here the nuclear membrane and rest of the assembly in the nucleus, but now here we don't want a nuclear membrane. Now we have to take this process forward. So this is the assembly. So ये होने वाला है यहाँ. Just try to understand the previous event occur in prophase, and now we are doing the metaphase, right? So because of this, the जो क्रोमोसोम यहाँ इंटरनल असेंबली जो न्यूक्लियस के अंदर था, नाउ इट हैज गॉट द स्पेस टू स्प्रेड फ्रीली. तो ये ऐसे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे. एंड देन आपको और एक चीज याद रखनी है कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो मैं एक मैग्नीफाइंग व्यू यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एक्चुअली. एंड ये जो इसके आप देख रहे हो, दीज आर द क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, and these chromatids are joined by the centromere. So आप यहाँ देख सकते हो, these are the chromatids. ये chromatids हैं and joined by a centromere. centromere से join हुए होते हैं कौन? क्रोमोसोम. But the point is that now how this structure is going to assemble in the metaphase, we'll see that. Now we'll discuss exactly what happens in the metaphase, right? So these are the things we already have discussed now. जैसे the complete disintegration of nuclear membrane is the remarkable stage of the metaphase, you can say, and the chromosome starts spreading in the cytoplasm of the cell freely, जैसे हमने अभी discuss किया. Condensation of chromosome is now completed in up to this phase. Chromosomes are made up of two sister chromatid. तो मैंने अभी आपको दिखाया, chromosomes made up of two sister chromatid joined by centromere, and centromere को भी एक disc shaped structure होता है connected, which is called as kinetochore. The small disc shaped structure at the surface of the centromere is called kinetochore. Now remember this, kinetochore is very important. इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं. तो kinetochore and centromere में confusion create मत करिए. Now you all have to understand centromere and kinetochore, basically ये जो assembly है, so these structure serves as the site of attachment of spindle fiber. ये स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट को एक साइट प्रोवाइड करता है टू द क्रोमोसोम. अभी जो क्रोमोसोम मूव होंगे, यहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा नहीं है, तो क्रोमोसोम को कहीं ना कहीं जाके अटैच होना पड़ेगा यहाँ इस स्टेज में. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टेज. So move into the position of the center of the cell, because now what happened, these serves to these structures serves as the attachment for the spindle fiber. Now what would happen with the chromosome? Now just now we have discussed ये centromere है, these are the chromatids, और इसको भी होल्ड करके रखने के लिए एक स्ट्रक्चर है which is a kinetochore. Kinetochore जो disc shaped structure है, now it serves basically the you can say attachment with the chromosome and spindle fiber. So आप यहाँ देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ ऐसे ड्रॉ करना है. So मैं यहाँ आपको बस एक या दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी. Now here you can see, you just have to draw the chromosome at the equatorial point of the cell. मतलब क्रोमोसोम्स नाउ स्टार्ट गेटिंग टाइटन, एंड वो क्रोमोसोम को अभी ये वाला जो पोल है ना, ये स्पिंडल फाइबर ऊपर पुल करेगा, और ये इधर, मतलब इन अ वे वो ऐसा टाइटन या स्ट्रेटन हो जाएगा और उसकी साइज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा. बट द पॉइंट इज दैट द टू की इवेंट्स आकर इन द मेटाफेज, दीज टू इवेंट्स आर द क्रोमोसोम स्टार्ट arranging themselves at the equatorial line of the cell. मतलब देखो ये equatorial line of the cell है, like this. क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज होना शुरू हो चुके हैं. तो ये जो आप इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसा ड्रॉ करते हो, तो आप देखो यहाँ से उसको बीच में एक असेंबली है लाइक स्पिंडल फाइबर की, उसने पकड़ के रखा है लाइक दिस. मतलब ये स्ट्रक्चर आप देखिए, अगर ऐसा स्पिंडल फाइबर है
तो स्पिंडल फाइबर ने उसको ऐसा होल्ड करके रखा है, बट दैट शुड बी द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द सेल, मतलब इसको मेटाफिजिक प्लेट भी बोला जाता है, इक्वेटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट हैज टू अरेंज इन द मिडल ऑफ द सेल, और वो मिडल ऑफ द सेल कैसा होगा, लाइक दिस। यहाँ वो जो सेंट्रोमियर है काइनेटोकोर, यहाँ ऊपर वाले को एक स्पेस देगा अटैचमेंट के लिए, नीचे वाला थोड़ा 3D स्ट्रक्चर भी अज्यूम करिए इसको, नीचे वाला जो है वो नीचे वाले फाइबर्स को बेसिकली उसको पकड़ के, बिकॉज सी अगर ये क्रोमोसोम है तो इसको ऊपर से और नीचे से ऐसा अरेंज करोगे तो इसको ऊपर से भी और नीचे से भी, ऊपर से नीचे से भी दोनों जगह से आपको अटैचमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट वो ऐसा इस पोजीशन में वहां होल्ड करके रह सकता है। सो दिस इज इट, ऐसा दिया हुआ है। तो बस आपको इतना याद रखना है, व्हाट आर द बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो कि क्रोमोसोम्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंड बाय सेंट्रोमियर, एंड सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, बेसिकली मेनली काइनेटोकोर है, वो सेंट्रोमियर को भी सपोर्ट कर रहा है। सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड्स को अरेंजमेंट में प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेज। नाउ जो भी हमने पढ़ा मेटाफेज में एग्जैक्टली क्या होता है वो हम वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं, बिकॉज आपको ये आपके 11th के बोर्ड में भी लिखना है ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। नाउ सी हम इसको हम कैसा इसको अरेंज होता है वो भी पढ़ेंगे। सो हमने यहाँ क्या लिखा कि इट्स अ सिस्टर, दे आर द सिस्टर क्रोमैटिड, और दिस इज अ काइनेटोकोर, और यहाँ उसको ज्वाइन, इसका डिस्क शेप रहेगा विच इज अ काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर से ज्वाइन होगा, काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोमियर को सपोर्ट करेगा। तो हमने अभी ये पढ़ा कि क्रोमोसोम्स हैं वो स्टार्ट कमिंग एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटोरियल विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। वन क्रोमैटिड मतलब दीज आर द क्रोमैटिड्स, राइट। तो ये क्रोमैटिड है, तो ये जो ऊपर वाला असेंबली है जैसे मैंने आपको बोला था, ये वाला यहाँ दो, यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर अज्यूम करिए, यहाँ एक क्रोमैटिड का असेंबली है, यहाँ दूसरा है। सो ये जो चीज है ना कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, मतलब देखिए यहाँ से ऊपर से ये ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा ऊपर के साइड पे टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, ऊपर का पोल मतलब देखिए यहाँ से ये ऊपर यहाँ से अरेंजमेंट शो कर रहा है, एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय, लाइक सपोज मान लीजिए यहाँ से इसका दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है जो कि नीचे से उसको पकड़ के रख रहा है by its kinetochore to the spindle fiber from opposite pole। so ये देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ से उसको पकड़ के रखे हैं, यहाँ से इसको होल्ड करके रखेगा लाइक दिस, और यहाँ से भी होल्ड करके रख रहा है, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर के स्पिंडल फाइबर से होल्ड होगा, ये वाला पार्ट ऐसा। सो आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसा अगर क्रोमोसोम है तो इसको ऊपर से एक स्पिंडल, उस पोल का स्पिंडल फाइबर पकड़ के रखेगा, नीचे से दूसरे पोल का स्पिंडल फाइबर उसको होल्ड करके बीच में इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करने के लिए उसको हेल्प करेगा। सो बेसिकली मेटाफेज में आपको दो की इवेंट्स याद रखने हैं। इवेंट है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम के कौन से पॉइंट को अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर, जो भी हमने पढ़े। क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइन अलोंग मेटाफिजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर एट बोथ poles। तो ये अभी हमने दो से तीन बार मैंने आपको बता दिया यहीं के यहीं। These are the two key events। If there is a question regarding metaphase, so you should able to write these 2 points very clearly and very confidently। क्लियर है? चलो, so अभी हमारा मेटाफेज खत्म हो चुका है। chromosomes have aligned at the equatorial point। Now we'll discuss कि एनाफेज मतलब इसके बाद वाला जो फेज है उसमें exactly क्या होता है। Now we'll discuss anaphase। Anaphase is a very simple phase, I would say, in the mitosis। So anaphase में क्या होता है, like we have already discussed this structure कि यहाँ ये स्पिंडल फाइबर है मेटाफेज में, एंड दिस स्पिंडल फाइबर जो है, ये स्पिंडल फाइबर में वो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाए हो चुके हैं, राइट। सो अगेन मैं आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देती हूँ ऐसा। तो ये हमने ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसको हमने यहाँ काइनेटोकोर से ऊपर से नीचे से असेंबली प्रोवाइड किया था जस्ट टू लाई एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। बट अभी क्या होने वाला है, यहाँ वो जो क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर के डिवीजन के साथ सेपरेट होने वाला है इनटू यू कैन से 2 सेट्स ऑफ क्रोमैटिड्स, राइट। सो अभी हमें समझना है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है हमको, राइट। एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, बट बिकॉज ना ये जो है ये क्रोमोसोम, इसका एक सेट जो है ना ये ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा और दूसरा सेट नीचे की तरफ पुल किया जाएगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो हमें ये यहाँ देखना है कि इसको
ये जो है ना, बिकॉज ये यहाँ इसके साथ अटैचमेंट शो करता है, इसीलिए भी ये ऊपर वाले डायरेक्शन में दिखेगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वो ऐसे अरेंज रहेंगे। जो क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे लाइक दिस बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, इसका डिवीजन करके हमें ये मिलेगा, राइट। सो यहाँ देखिए वो जो स्ट्रक्चर है वो आपको अभी ऐसी असेंबली के साथ दिखाई देगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ सेंट्रोमियर का डिवीजन हो चुका है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि सेंट्रोमियर मतलब क्रोमोसोम को हमें डिवाइड करना है, बिकॉज क्रोमोसोम डिवाइड होगा सेंट्रोमियर की हेल्प से, तभी तो हमें आगे जाके 2 डॉटर सेल्स मिलने वाली है। हम ये किसके लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट अ 2 डॉटर सेल एग्जैक्टली सेम विद द पेरेंट वन, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर माइटोसिस। सो इसलिए देखो ये अभी ऐसा होने वाला है, डिवीजन होने वाला है और वो अभी सेपरेट होने वाले हैं। तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। ना जो अभी हमने पढ़ा है उसको और एक बार समझ लेते हैं। एनाफेज मतलब क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है ना वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम का, एंड दैट इज वाई बिकॉज नाउ दे हैव टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सो ईच वन विल हैव इट्स ओन सेंट्रोमियर। खुद के पास, सबके पास उनका खुद का सेंट्रोमियर होना चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू बिकम अ डॉटर सेल इन फ्यूचर आफ्टर टेलोफेज. So centromere of each chromosome divides into 2 so that each chromatid will have its own centromere. As each chromosome moves away from equatorial plate, अभी वो move कर चुका है जैसे हमने डायग्राम में शो किया, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole. दोनों के पोल्स की तरफ वो डायरेक्शन शो कर रहा है, so that वो ट्रेल जो है मतलब एक ट्रेल जैसा ये फॉलो कर रहा है ना, ये ऊपर चला गया और ये उसकी क्रोमैटिड नीचे है, ये यहाँ ऊपर चला गया, ये उसकी क्रोमैटिड ऐसे है. So this is how the arrangement at the anaphase is toward the pole and hence at the leading edge ये लीड करता है and with the arms of the chromosome trailing behind. ये आर्म्स हो गए ना क्रोमोसोम के, ठीक है, तो ये आर्म्स हो गए ये क्रोमोसोम के, वो नीचे ट्रेल कर रहे हैं और वो आगे निकल चुका है. सो आप ये समझ सकते हो यहाँ सेंट्रोमियर जो है वो लीड करता है, यहाँ सेंट्रोमियर लीड करता है और क्रोमोसोम के आर्म्स हैं वो पीछे ट्रेल करते हैं. की इवेंट्स बस 2 ही याद रखने हैं. सेंट्रोमियर डिवाइड होने से क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं और दूसरा है क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव हो रहे हैं. So you can say because of the centromere division they start repelling with each other and then one set of chromatid will go to one pole, another set of chromatid will go to another pole. But the point is that कि chromatid जो है वो लीड करता है इस फेज को और बिकॉज ऑफ दिस लीडिंग क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं वो पीछे ट्रेल करते हैं. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. तो एनाफेज काफी इजी है. नाउ विल डिस्कस द टेलोफेज बिकॉज नाउ एट द एंड ऑफ द टेलोफेज विल गेट द 2 डॉटर सेल्स. नाउ सी विल डिस्कस टेलोफेज. टेलोफेज बहुत इजी है याद रखना, आपको याद रखना है टेलोफेज इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज. प्रोफेज में जो डिसअपियर हुआ था ना वही रीअपियर होना शुरू हो जाएगा. प्रोफेज में हमने पढ़ा था क्या क्या डिसअपियर हुआ था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप देख सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड वो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल वेयर डिसअपियर इन द प्रोफेज. नाउ दे विल स्टार्ट रीअपियरिंग, राइट. तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक सेल है और इस सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी एट द 2 पोल्स फॉर्म हो चुके हैं. तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि नाउ देयर विल बी अ रीअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक दिस एट द 2 अपोजिट पोल्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगा. एट द सेम टाइम देखो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, वो वहां अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं. मैंने पहले ही बताया था they will be representing as the future daughter cell and the nuclear envelope develops around the chromosome clusters at each pole forming 2 daughter nuclei. So हमारे यहाँ 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं बिकॉज अब तक हमने कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का डिवीजन करना बहुत जरूरी था. देन कैरियोकाइनेसिस के बाद हम साइटोकाइनेसिस करके इन दोनों सेल्स को सेपरेट कर देंगे. तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी रिफॉर्म हो जाते हैं. तो आपको पहली चीज याद रखनी है, दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज. दिस इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है. 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं. दे विल स्टार्ट लाइक अ क्रोमैटिन फाइबर्स. क्रोमैटिन फाइबर बन जाएंगे यहाँ. न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा. न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो देयर. सो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ इज ऑल्सो देयर. ER, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस भी आ गया है वहां. सो दिस इज हाउ इट इज. टेलोफेज जो है, टेलोफेज में अभी 2 डॉटर न्यूक्लियाई हमको मिल चुके हैं. These are 2 डॉटर न्यूक्लियाई. स्पिंडल फाइबर जो प्रोफेज के एंड में फॉर्म हुआ था वो अभी यहाँ डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ रिवर्स बोला है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा.
नाउ एट द एंड ऑफ टीलोफेज के एंड में हमको ये दो सेल्स को सेपरेट कराना है, बट दो सेल को सेपरेट कराने के लिए हमको साइटोकाइनेसिस करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना पड़ेगा, जो कि प्लांट एंड एनिमल में अलग अलग क्राइटेरिया के साथ किए जाते हैं. नाउ विल क्विकली डिस्कस दिस साइटोकाइनेसिस. विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच हैपेंस एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. We already have seen the karyokinesis मतलब division of nucleus. Now we'll see the cytokinesis. And cytokinesis मतलब now it's time to separate. Now it's time for the separation of two daughter cells. The division of protoplast of a cell into two daughter cells after the nuclear division at the end of the cell division. At the end of the mitosis बोल सकते हैं because हम mitosis पढ़ रहे हैं. But commonly at the end of cell division. But then plant and animal cell has a different criteria for the cytokinesis. एनिमल सेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो इसमें इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इसके पास सेल वॉल नहीं होता है. एनिमल सेल जो है ना, इसमें एक फरो अपीयरेंस ऑकर होता है. लाइक अगर आप कोई सेल यहाँ एज्यूम करते हो तो इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन. एनिमल के पास सेल मेम्ब्रेन है, हमको पता है. व्हाट हैपेंस, फरो अपीयरेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक्चुअली यहाँ एक फरो ऑकर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लाइक दिस. एक फरो मतलब एक नॉच क्रिएट होता है, और वो नॉच ग्रेजुअली डीपन्स डाउन होते जाता है, और जब वो डीप होते जाता है इवेंचुअली इट वुड प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल्स. मतलब यहाँ हमारी दो डॉटर सेल्स है, इनके पास सब कुछ है ना. दे हैव अ यू कैन से क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, फिर इसके पास आप देख सकते हो इसके पास रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स भी है. तो कंप्लीट सेल है ये, इतना याद रखिए. मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट हमें बस यहाँ फोकस करना है साइटोकाइनेसिस को लेके. तो क्या हो गया, ये जो फरो था ना, ये फरो इसने इन्वाइजिनेशन मतलब फरो अपियर हुआ इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फरो ऐसे पेरिफेरल पार्ट से मिडिल पार्ट तक डीप डाउन होते गया. सो ये देखो, ये पेरिफेरल पार्ट है, दिस इज अ पेरिफेरल पार्ट, एंड यहाँ आप देख सकते हो दिस इज अ सेंट्रल पार्ट. सो ये पेरिफेरल पार्ट से अंदर की तरफ जाते गया सेंटर में, एंड सो दैट नाउ द रिजल्ट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होगी पेरेंट सेल की विद द सेम प्लॉइडी लेवल, जो कि डिप्लॉइड होगी. माइटोसिस में हमने यही पढ़ा है. So this is the criteria for the animal cell. Now we'll discuss the criteria for the plant cell, because plant cell has a cell wall. So इसका थोड़ा सा अलग criteria है, वो हम पढ़ लेते हैं. Now we'll discuss the criteria for the plant cell in terms of cytokinesis. Because plant cell के पास cell wall होता है, तो cell wall की वजह से it has got a different criteria for the cytokinesis. Plant cell में क्या होता है, cell plate आप बोल सकते हो, cell plate और middle lamella जो होता है सेंट्रल से पेरिफेरल तक वहां फॉर्म होना शुरू हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल मिडिल लैमेला, एमएल मतलब मिडिल लैमेला, सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ फॉर्म होना शुरू हो जाता है. एनिमल में हमने क्या पढ़ा, वो जो फरो है वो बाहर से अंदर आ रहा था, पेरिफेरल टू सेंट्रल आ रहा था, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है. यहाँ मिडल लैमेला, जो कि सेल प्लेट बोल सकते हो, मिडल लैमेला एक सेल वॉल का एक कंपोनेंट है जो मिडल में सिचुएटेड रहता है. सो मिडल लैमेला जो है वो यहाँ से यहाँ फॉर्म होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, एंड इन दैट वे विल गेट आर टू डॉटर सेल इन द प्लांट सेल. So plant cell and animal cell, they both have a different criteria for the cytokinesis. So at the end of this cytokinesis हमें दो डॉटर सेल्स मिल चुकी है, और इसके साथ हमारा माइटोसिस भी यहाँ कवर हो चुका है. We have seen प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस भी पढ़ लिया. अभी इसको अच्छे से समझिए, नोट्स लिखिए, एंड एनसीईआरटी से भी अच्छा सा रीड करोगे तो ये चैप्टर आपका नीट के लिए प्रिपेयर हो रहा है. उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, सो दैट एमसीक्यूज आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई है, एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए आप उसको टेस्ट कर सकते हो. ओके, सो नाउ इफ एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.